In today's class, we are going to discuss about the posterior abdominal wall. The posterior abdominal wall, it extends from the 12th rib above to the pelvic brim below. तो कहाँ से कहाँ तक extension होता है posterior abdominal wall का? 12th rib ऊपर और नीचे below it get extended up to the, आपको articulated pelvis पढ़ा दिया गया है, तो you all know what is pelvic brim. So it extends below up to the pelvic brim. हाँ, what happened? क्या प्रॉब्लम है? तुमसे बात कर रही हूँ मैं. So this posterior abdominal wall, it extends from the 12th rib above till the pelvic brim below. वो जो नीचे हेड डाउन किया है ना, उसको उठाओ. क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? If you want to sit properly, then sit, otherwise leave. So the layers which will get in the posterior abdominal wall from behind to front, that is from posterior to anterior. The most posterior structure is the skin. Then you will get the superficial fascia, deep fascia. Then you will get the muscles of posterior abdominal wall as well as nerves and vessels. उससे anterior क्या होगा? एक्स्ट्रापेरिटोनियल फैट होगा और फिर उसके भी आगे क्या होगा? पैराइटल पेरिटोनियम. बाकी सब उसके बाद आप एब्डोमिनल कैविटी में रीच कर गए. तो फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर इट इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल्स अलोंग विद वेसल्स एंड नर्व्स. Anterior to it, extraperitoneal fat and then parietal peritoneum. Then you will get inside the cavity, that is the abdominal cavity. So these are the different layers which will get in the posterior abdominal wall. So this posterior abdominal wall, it is formed by some bones, bony structure, some muscles and the fascia covering the muscles. ठीक है? तो किस किस चीज से बनी? बोन से बनी, मसल्स से, as well as the fascia which are covering the muscles. तो पहले हम अगर बोनी पार्ट की बात करें तो बोनी पार्ट इट इज डिफरेंट इन द मिड लाइन एंड ऑन ईदर साइड. ठीक है? तो इन द मिड लाइन द बोनी स्ट्रक्चर्स आर द 5 lumbar vertebrae and the intervertebral disc in between the 5 vertebrae. ठीक है? सेंटर लाइन में क्या आया? वर्टिब्री आया, 5 lumbar vertebrae और उनके बीच बीच के intervertebral disc. ऑन ईदर साइड आप देखोगे तो अबव, मैंने अभी आपको बताया 12th रिब आएगा, तो अबव इट इज अ 12th रिब और बिलो तो पेल्विक ब्रिम की बाउंड्री आएगी. ठीक है? और इन बिटवीन द टू जो बीच वाला पार्ट है ऑन द लेटरल साइड इट इज फिल्ड बाय मसल्स. वहां पे कोई भी ये बोनी स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है? तो द बोनी स्ट्रक्चर इन द मिड लाइन आर द प्रेजेंस ऑफ दीज 5 lumbar vertebrae and the intervertebral disc in between these 5 vertebrae, whereas on each side, lateral side, above it is formed by the 12th rib and below it is formed by the pelvic brim. ठीक है? And the rest part it is filled by the muscles. ठीक है? And it is divided into 2 parts by the iliac crest above and a lower part. ठीक है? एक 2 पार्ट में डिवाइड है, एक iliac crest के above वाला पार्ट और एक ये bony pelvis के वाला पार्ट. So the muscles which are present above the iliac crest from medial to lateral side which will fill the gap. So from medially psoas major, उसके बाद there is a muscle called quadratus lumborum और उसके बाद भी transversus abdominis हो जाएगी which is a part of anterior abdominal wall. है ना? transversus abdominis किसका पार्ट है? anterior abdominal wall का. तो on either side जो ये गैप है यहाँ से लेकर के pelvic brim तक ये मसल से फिल है और ये मसल्स भी डिफरेंट है अबव द iliac crest एंड बिलो द iliac crest. तो अबव द iliac crest इट इज फ्रॉम मीडियल टू लेटरल psoas major, quadratus lumborum and transversus abdominis and below it is bounded medially. यहाँ पे यही psoas के फाइबर्स आएंगे फॉर इट्स इंसर्शन और लेटरली क्योंकि iliac fossa का पार्ट आ जाएगा तो वहां पे क्या आएंगे? iliacus मसल आएंगे. तो अबव यहाँ पे कोई बोनी पार्ट नहीं है, अदरवाइज लोअर पार्ट में यहाँ क्या आएगा? इलियम वाला पार्ट आएगा. So this forms the bony part as well as the muscles which fill the gap जहाँ पे bones नहीं है. And all the fascias, तो psoas major और iliacus को common fascia cover करता है जिसको क्या बोलते हैं? iliopsoas fascia. ठीक है? iliopsoas fascia. और जो quadratus lumborum muscle को fascia cover करता है उसको क्या बोलते हैं? thoracoabdominal fascia. क्या बोलते हैं? thoracoabdominal fascia. So these are the 2 fascia. Come inside. हाँ वही है, thoracoabdominal या thoracolumbar fascia उसी को कहते हैं. अभी बताऊंगी.
So these are the bony part and muscular part which forms the posterior abdominal wall. So these are the muscles as well as fascias and bony part which form the posterior abdominal wall. Now the contents of posterior abdominal wall. इसमें कुछ कंटेंट्स आपको पहले भी पढ़ाई हो गया है तो वो हम डील नहीं करेंगे. तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल? विल गेट द मसल्स एंड फेशिया ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ग्रेट वेसल्स ऑफ एब्डोमेन. कौन होते हैं ग्रेट वेसल्स? एब्डोमिनल ऑर्टा एज वेल एज इंफीरियर वेना कावा, जिसकी अलग से आपकी क्लास हो चुकी है. रेस्ट एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एजाइगस एंड हेमिएजाइगस वेन, ये भी आपने थॉरेक्स में पढ़ लिया है. Then nerves and lymphatics and lymph nodes. So in today's class we will discuss the muscles and fascia present in the posterior abdominal wall, the nerves as well as the lymphatics of posterior abdominal wall. So first the muscles of posterior abdominal wall. So there are basically three muscles present in the posterior abdominal wall. One is psoas major, one is iliacus, and the third one is quadratus lumborum. There may be presence of another muscle known as psoas minor, which is present only in 50% of individual. ठीक है, तो 50% of individual में ही present होता है. तो basically तीन muscle है, but fourth muscle है psoas minor. So we will discuss all these muscles: the psoas major, the psoas minor, iliacus, and the quadratus lumborum. Stand up. हाँ, क्या हुआ? क्यों बातें कर रही हो? सामने बैठ के बातें कर रही हो, बोल रही है नो मैम. Here I'll throw you out of the class. हाँ, आपसे बोल रही हूँ मैं. So first we'll discuss about the psoas major muscle. This psoas major muscle is a fusiform shape of muscle which arises, sit down, by 14 different slips. It arises by 14 different slips. उठो, एक तो लेट आए हो. गेट अप. आप चारों बाहर जाओ, बाहर जाओ. नहीं, बस एक ही बात आता, बाहर जाओ. तुम भी, यू आर नॉट स्पेशल, गो आउटसाइड. तो कभी सुधर नहीं सकते हो. तमाशा करना. गेट लो. So this psoas major muscle is a long fusiform muscle and it arises by 14 different slips. ठीक है, तो जो 5 lumbar vertebrae है, it arises from the anterior surface as well as the lower border of transverse process of all these 5 lumbar vertebrae. तो 5 slips तो यहाँ से आ गई कि सबके सारी lumbar vertebrae के anterior surface से और उसके transverse process के lower border से वहां से आ गई. Next जो 5 slips होगी, that arises from the intervertebral disc. ठीक है, जो कौन से इंटरवर्टिब्रल डिस्क? T12 और L1 के बीच में L1, L2, L2, L3 और L4, lastly L4, L5. So these are the 5 digitation which arises from the intervertebral disc in between these vertebrae. ठीक है, and rest 4, 10 हो गए टोटल. Rest 4 जो बचे, that arises, जितनी भी आपकी 5 vertebrae है उनके बीच, उनकी जो बॉडीज हैं उनके बीच में गैप है, उस गैप को टेंडिनस आर्च, जो टेंडिनस आर्च सब वर्टिब्रल को 5 है तो बीच में कितने आर्च होंगे? 4, जो उनको अटैच करेगी एक दूसरे से. तो these are the 4 which gives the origin. So all these are the 14 slips from where the psoas major muscle get origin. एक तो बॉडी से हो गई, ट्रांसवर्स प्रोसेस के लोअर बॉर्डर से हो गई, दूसरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क से हो गई, और तीसरी जो बॉडीज के बीच में जो टेंडिनस आर्च है वहां से हो गई. तो 5, 5, 10 और प्लस 4. So these are the 14 different slips from which the psoas major get origin. After origin, it passes downward and laterally, crosses then it passes behind the inguinal ligament, passes in front of the hip joint and get inserted onto the femur. Femur में भी कहाँ पे? Lesser trochanter के टिप के anterior part पे, anterior surface of lesser trochanter पे it gets inserted.
Okay. So the muscle after origin it will passes downward and laterally pass behind the inguinal ligament. इस इमेज में भी आप दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे inguinal ligament होगा. So the muscle passes behind the inguinal ligament, then it crosses the hip joint and get inserted over the lesser trochanter of femur along with iliacus, है ना, क्योंकि दोनों बनाता है एक टेंडन, iliopsoas tendon. तो along with it get inserted over the anterior surface of lesser trochanter of femur. Now the nerve supply of psoas major muscle, it is from the ventral primary rami of L2 to L4 spinal nerve. कहीं कहीं पे L1 भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है. दैट बेसिकली क्या है, L2 से लेकर के L4 स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रमाई से psoas मेजर सप्लाइड होता है. नाउ द एक्शन ऑफ psoas मेजर, द psoas मेजर हैज गॉट टू बेसिक एक्शन. सबसे पहले कि अगर वो ऊपर से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ थाई, है ना, एट हिप जॉइंट, ठीक है. और अगर मसल नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इट विल कॉज द फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, जिसमें जो कब यूज होगा, जब हम रिकमेंड पोजीशन से सिटिंग पोस्चर में आते हैं, देन इट विल एक्ट. एज वेल एज जो थर्ड एक्शन है, ये क्या करता है, थोड़ा लेटरल फ्लेक्शन में भी हेल्प करता है ट्रंक के, ठीक है. तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ psoas मेजर. एक सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, ठीक है. सेकेंड क्या हुआ, इट इज फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक विच विल हेल्प इन रिकम्बेंट से सिटिंग पोस्चर में हेल्प करता है, क्योंकि ट्रंक को फ्लेक्स करने में हेल्प कर रहा है. और थर्ड वन इज द लेटरल फ्लेक्शन में भी हेल्प करेगा ट्रंक का. तो दीज आर द थ्री एक्शंस ऑफ psoas मेजर मसल. अब नाउ psoas मेजर को ये भी क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि psoas मेजर मसल की मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल कौन है. तो दिस मसल psoas मेजर मसल इज द की मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि बाकी वेसल्स, और आपको पता है कि लंबर रीजन में क्या होगा, लंबर प्लेक्सस होगा. तो जो लंबर प्लेक्सस का प्रेजेंस होता है, दैट इज विद इन दी psoas मेजर मसल, ठीक है. लंबर प्लेक्सस इज प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस ऑफ psoas मेजर मसल. तो सारी नर्व्स कहाँ से इमर्ज होगी, यहाँ से इमर्ज होगी. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द की मसल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. So there are 5 muscle which arises from the lateral border of psoas major muscle, ठीक है. lateral border of the psoas major muscle से कितनी मसल अराइज करती है, 5 muscle. तो from above downward these muscle are, सबसे ऊपर subcostal, then iliohypogastric, then ilioinguinal, then lateral cutaneous nerve of thigh. All these arise above the iliac crest. Only one nerve, that is this nerve, femoral nerve, which arise below the iliac crest इन बिटवीन द. यहाँ पे अभी मैंने आपको जनरल में बताया था कि ये मसल इलियकस है और ये psoas मेजर है, क्योंकि दोनों को कॉमन टेंडन बना करके लेसर ट्रोकैंटर पे इंसर्ट होना है. तो ये जो फेमरल नर्व होती है, दैट लाइज इन बिटवीन द psoas मेजर एंड इलियकस, और वहां से इमर्ज करके बाहर आती है, ठीक है. तो ऑल टुगेदर फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ psoas मेजर मसल देयर इज इमर्जन ऑफ 5 मसल, 4 अबव द इलियक क्रेस्ट, put off, and 1 below the iliac crest. The 5 subcostal, iliohypogastric, ilioinguinal and lateral cutaneous. और ये सब किसकी ब्रांचेस है, सबकॉस्टल को छोड़ करके बाकी सारी किसकी है, लंबर प्लेक्सस की ब्रांचेस है, जो कि अभी आगे डील करेंगे. एंड द ओनली वन नर्व, हाँ क्या, अभी क्या टाइम हो रहा है तुम्हारे पास, तो क्या, 12:20 is not the time to come to the class. Go closer. मन किया तब करके आ गया. And the one nerve which arises below the iliac crest is the femoral nerve which passes between the iliacus and the psoas major muscle. अब एक nerve जो होती है, that passes anterior to the psoas major muscle, that is the genitofemoral nerve. कौन सी nerve, genitofemoral nerve, इसके substance को pierce करके anteriorly आती है. तो the nerve which passes anterior to the psoas major is the genitofemoral nerve. And there are 3 structures in which there are 2 nerve trunks and 1 artery which passes from the medial, which comes out from the medial border of the psoas major muscle, which are the most the most medial one is the obturator nerve. उसके lateral आएगा आपका, यहाँ पे lumbar लिखा है, but it is iliolumbar artery, और उसके भी lateral lumbosacral trunk. So these are the 3 structures which emerge from its medial border, and that's why, ठीक है. So these are the 3 structure: obturator nerve,
then iliolumbar artery and the lumbosacral trunk, which emerges from its medial border. So that's why it is called the key muscle of posterior abdominal wall. There is triangle known as lumbosacral triangle of Marshall. This triangle is present on the lateral side of fifth lumbar vertebrae. तो ये triangle कहाँ है? It is present on the lateral side of fifth lumbar vertebrae and the psoas major muscle के बीच में, और below क्या आएगा इसका? ala of sacrum आएगा, क्योंकि lumbar के बाद कौन सा vertebrae आएगा? Sacrum vertebrae आएगा. तो this triangle, it is a triangle which is bounded medially by the body of fifth lumbar vertebrae. Laterally it is bounded by the psoas major muscle. Below it is bounded by the ala of sacrum. Sacrum पढ़ाई हो गया ना, आपने साइड में देखा है ala है, तो ala of sacrum. और एपेक्स का होगा ट्रायंगल का जहां फिफ्थ लंबर वर्टिब्री और psoas मेजर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो दैट इज द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, वेयर एज द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म बाय अ लिगामेंट नोन एज इलियोलंबर लिगामेंट. ठीक है, तो दिस इज द ट्रायंगल नोन एज लंबोसेक्रल ट्रायंगल ऑफ मार्शल. तो आप देख लो इसकी बाउंड्री. Medially it is bounded by the body of fifth lumbar vertebrae. Laterally it is bounded by the psoas major का medial border. Below it is bounded by the ala of sacrum. Apex यहाँ हो गया जहाँ पे fifth vertebrae और ये दोनों का fusion होगा, और फ्लोर किस चीज से बना? इलियोलंबर लिगामेंट से बना. एंड इन दिस ट्रायंगल आपको चार स्ट्रक्चर्स इमर्ज होकर के होते हैं, जिसको कि अभी मैंने तीन तो आपको बढ़ाया, जो कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द psoas मेजर मसल से इमर्ज हो रहे हैं. तो वो फ्रॉम लेटरल टू मीडियल क्या क्या हो गया? ऑब्टुरेटर नर्व हो गया, इलियोलंबर आर्टरी हो गया, लंबोसेक्रल ट्रंक हो गया, और सबसे मोस्ट मीडियल सिंपैथेटिक ट्रंक ऑफ लंबर रीजन. ठीक है, तो दीज आर द फोर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस ट्रायंगल फ्रॉम लेटरल टू मीडियल. और मीडियल से देखोगे तो सिंपैथेटिक ट्रंक, देन लंबोसेक्रल ट्रंक, देन इलियोलंबर आर्टरी, एंड मोस्ट लेटरली इट इज बाय द ऑब्टुरेटर नर्व. So this is a triangle known as lumbosacral triangle of Marshall. Then the next muscle, that is the psoas minor muscle, जो कि मैंने क्या बताया कि हमेशा नहीं रहता है, only 50% of individual में you may get this muscle, and this muscle is present just anterior to the psoas major muscle. ठीक है, a small muscle which is also elongated, slender shape, fusiform shape of muscle है, which is present anterior to the psoas major muscle. तो ये psoas major है, और psoas major के anteriorly जो ये मसल है जो कि नीचे आकर के पूरी टेंडन में कन्वर्ट हो जाती है, दिस मसल इज psoas minor muscle. This psoas minor muscle, it arises from the intervertebral disc in between T12 to L1. इमेज में भी आपको दिख रहा है, T12 और L1 के बीच का जो intervertebral disc है वहां से अराइज करती है. तो it get arise and then it also passes downward and laterally behind the inguinal ligament along with the psoas major muscle and get inserted over the iliopubic eminence. So this psoas minor muscle, it get inserted over the iliopubic eminence. और psoas major कहाँ हुआ था? लेसर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर पे हुआ था, उसके एंटीरियर सरफेस पे. ठीक है, तो ये मसल नीचे आकर के पूरी टेंडन में कन्वर्ट हो जाती है, और बोथ ऑफ देम इज कवर्ड बाय, अगर प्रेजेंट है तो सेम फेशिया में कवर्ड होगी, दैट इज द शॉर्स फेशिया, जिसको हम शॉर्स सीट भी कहते हैं. और जब नीचे में आती है तो ये वाली शॉर्स फेशिया इलियक फेशिया, क्योंकि इलियक मसल कहाँ है? ओनली प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट, इलियक फोसा से अराइज करती है इलियकस. तो नीचे में psoas फेशिया और इलियकस फेशिया दोनों फ्यूज होकर के कॉमन फेशिया बना जाती है, इलियोपsoas फेशिया. ठीक है, अच्छा, दिस psoas minor muscle, it is supplied by L1 nerve. ठीक है, L1 spinal nerve से सप्लाइड होती है, और इसका एक्शन क्या है? इट इज अ वीक फ्लेक्चर ऑफ ट्रंक. क्या है इसका काम? इट इज अ वीक फ्लेक्चर ऑफ ट्रंक. ट्रंक को फ्लेक्स करती है रिकमेंड से सिटिंग पोजीशन में, psoas का हेल्प ही करती है, तो बट इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इट इज अ वीक फ्लेक्चर. So this is all about the psoas minor muscle. अब now the fascia which will cover the psoas muscle, अगर दोनों प्रेजेंट है तो दोनों, तो that fascia is known as psoas fascia, या इसको और भी बोलते हैं psoas sheet भी बोलते हैं. ठीक है, so it is known as psoas fascia or the psoas sheet. So this psoas sheet covers the psoas major muscle, or below it get attached with the fascia covering the iliacus, and that fascia is known as iliopsoas fascia. तो जो ये इलियोपsoas fascia है ना, मीडियली ये कहाँ अटैच्ड होगी? इन वर्टिब्रीज पे और इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे, और लेटरली, इसके लेटरल अभी कौन सी मसल बताई थी मैंने आपको? psoas मेजर के बाद क्वाड्रेटस लंबोरम है. तो जो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है वो
थोरैकोलंबर फेशिया से कवर्ड है, तो लेटरली इट गेट किसके साथ कंटिन्यूस हो जाएगी, इट विल गेट कंटिन्यूस विद द थोरैकोलंबर फेशिया, है ना। तो लेटरली इट गेट अटैच्ड ओवर द थोरैकोलंबर फेशिया और मीडियली इट गेट अटैच्ड ओवर द 5 वर्टिब्री एज वेल एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर ऊपर में पूछा जाए तो आपको डायफ्राम याद है, डायफ्राम का जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट वहां पे जाकर के वो अटैच हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द अटैचमेंट ऑफ इलियोपसॉस फेशिया। अब नाउ देयर इज द अप्लाइड नोन एज पसॉस एब्सेस। अगर कभी वर्टिब्री में ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, तो इट विल लीड टू एन एब्सेस। एब्सेस बनाएगा, तो एब्सेस जो होता है ना वो कहाँ ड्रिबल करता है, लेटरली ड्रिबल करता है डीप टू द शीट, जो सॉस शीट है या जो सॉस फेशिया है उसके डीप में ड्रिबल करती है। और ये एंटीरियर एक्सटेंड क्यों नहीं करता है, क्योंकि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो कि वर्टिब्री को अटैच करती है ना, याद होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट विच विल कनेक्ट द बॉडी ऑफ द ऑल द वर्टिब्रीज। So due to attachment of anterior longitudinal ligament and posterior longitudinal ligament, it doesn't extend anterior and posterior, it extend laterally। कहाँ जाएगी, सॉस फेशिया के डीप में जाएगी और वहां से ड्रिबल करके, क्योंकि ये फेशिया कहाँ तक जा रही है, फेमोरल ट्रायंगल तक जा रही है, तो इट विल प्रोड्यूस अ सॉफ्ट स्वेलिंग इन द फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि एंटीरियर अटैचमेंट, एंटीरियर एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट उसको रोक करके रख रहा है, ठीक है। तो उसकी जगह पे कहाँ एक्सटेंड होगा, वो जो एब्सेस हो गया है ट्यूबरकुलोसिस के बाद, वो एक्सटेंड करेगा लेटरली इन द सॉस फेशिया कवरिंग द सॉस मेजर मसल। और सॉस मेजर कहाँ तक जा रहा है, लेसर ट्रोकैन तक जा रहा है, तो ये ड्रिबल करके फेमोरल ट्रायंगल में आएगा और वहां पे एक सॉफ्ट स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज नोन एज सॉस एब्सेस। नाउ द नेक्स्ट मसल, दैट इज द इलियकस मसल। तो दिस इलियकस मसल इट अराइजेस, कहाँ से अराइज करती है, इलियक फोसा का, ये वो ऊपर वाला पार्ट मत देखो, यहाँ देखो, दिस इज द इलियकस मसल और ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इलियक फोसा। तो इट गेट अराइज फ्रॉम द अपर 3/4 पार्ट ऑफ इलियक फोसा एज वेल एज इनर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट। और इसके अलावा कहाँ से, जो लेटरल मास है, ये सैक्रम का लेटरल पार्ट है, उससे भी अराइज करती है, जो एला ऑफ सैक्रम है वहां से भी अराइज करती है। तो दिस इलियकस मसल इट गेट अराइज फ्रॉम द upper 3/4 of the iliac fossa, medial inner margin of iliac crest as well as from the sacrum का lateral वाला portion, वहां से भी arise करेगी। After origin it will run along with the psoas major muscle और इसका shape क्या है, it is a fan shaped muscle, ठीक है। It is a fan or triangular shaped muscle, it runs downward along with the psoas major muscle और common tendon बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं, iliopsoas tendon बनाते हैं। और it get inserted सिमिलरली एज द सॉस मेजर मसल। बस आपको याद होगा, अगर लोअर लिम्ब तो याद होगा कि सॉस मेजर सिर्फ और सिर्फ लेसर ट्रोकैंटर पे रहता है, बट इलियकस का ओरिजिन इंसर्शन क्या होता है, लेसर ट्रोकैंटर के नीचे भी जाता है 2.5, है ना, थोड़ा सा नीचे भी जाता है लेसर ट्रोकैंटर के। तो इट गेट इंसर्टेड ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेसर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर एज वेल एज द एरिया बिलो द लेसर ट्रोकैंटर ऑफ फीमर, बट सॉस सिर्फ लेसर ट्रोकैंटर पे होगा। इलियकस के कुछ फाइबर क्या होंगे, वो नीचे भी जाएंगे lesser trochanter। So this is the insertion of iliacus muscle. Now the nerve supply of iliacus किससे होता है, लोअर ट्रायंगल में, ये लोअर लिम्ब में भी पढ़ा है, फेमोरल नर्व से। तो इट इज सप्लाइड बाय द फेमोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू L2 ठीक है। तो ये किस, उठ जाओ तुम्हें अभी DH में सर्टेन डाटा तो नहीं हुआ था। गेट अप यू बॉय, गेट अप, उठने के लिए बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कंटिन्यूस उससे बात कर रहे हो और इससे, तुम तीनों बाहर जाओ, बाहर जाओ। हाँ, अभी ये बात नहीं कर रहा था कि नहीं कर रहा था, यू ऑल्सो बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो लिटरली तुम लोगों ने लेक्चर्स का ना तमाशा बनाया भाई। मैंने 3-4 कॉलेज में मैं खुद पढ़ी हूँ और पढ़ाई हूँ, यहाँ की तरह मैंने कहीं नहीं देखा। सीरियसली दैट इज, पता नहीं क्या है तुम्हारा, और ये भी नहीं कह सकती तुम्हारा बैच, यहाँ तो मतलब सेशन बाय सेशन, ये 3rd बैच है, मैं तो 3rd बैच से यही देख रही हूँ, बढ़ते जा रहा है यहाँ।
दिमाग खराब। I said keep quiet. ठीक है, इट इज सप्लाइड बाय द फेमोरल नर्व और इसका भी काम क्या है, फ्लेक्शन है। सॉस मेजर के साथ ही काम करेगा, साथ इंसर्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। ठीक है, नाउ द लास्ट मसल दैट इज द क्वाड्रेटस lumborum muscle. This quadratus lumborum muscle, it is a quadrilateral shaped muscle which arises from the posterior one. ये नीचे से अराइज होकर के 12th रिब पे जाकर के इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑरिजिन नीचे है और इंसर्शन कहाँ है, so it get origin from the posterior 1/3 of inner lip of dorsal segment of iliac crest. It get arise from ये, ठीक है, ये this is the dorsal segment of iliac crest, इसके posterior 1/3 of inner lip से origin होती है, then it runs upward and get inserted over the medial part of the lower border of 12th rib, 12th rib के lower border पे। अच्छा, इसका origin along with iliac crest जो lumbar vertebrae है उनसे भी होती है। ठीक है, लंबर वर्टिब्री के कहाँ से होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस से। इट ऑल्सो गेट ऑरिजिन फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ ऑल दीज लंबर वर्टिब्री, और इंसर्शन भी ना 12th रिब के अलावा सारे लंबर वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस से होती है। बट डिफरेंस ये है कि ऑरिजिन आगे से है और उसके जस्ट पोस्टीरियरली जाके के कुछ फाइबर इंसर्ट होते हैं। So this transverse process of lumbar vertebrae has both its origin as well as insertion. बट ऑरिजिन के जो फाइबर होंगे वो इंटीरियर होंगे और इंसर्शन के जो फाइबर होंगे वो पोस्टीरियरली होंगे, और साथ साथ 12th रिब पे भी जाके इंसर्ट हो रहा है और ऑरिजिन इलियक क्रेस्ट के पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से भी हो रहा है। So this is the origin and insertion of quadratus lumbar and this lumborum muscle, and this muscle is covered by the thoracolumbar fascia. Its nerve supply is from T12 to L4 spinal nerve. ठीक है, T12 से लेकर के जो जहां से जहां तक एक्सटेंशन है L4 या L5 वहां तक से होती है। ठीक है, और इसका काम क्या है, लेटरल फ्लेक्शन में हेल्प करता है। और क्या काम है, एक तो लेटरल फ्लेक्शन में हेल्प करेगा, फिर दूसरा जब हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं तो हमें हमारे ट्रंक को स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है, और थर्ड जब हम इंस्पायर करते हैं तब 12th रिब को पोजीशन में पकड़ के रखता है ना, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, बेटर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम को तो 12th रिब को होल्ड करके रखता है। तो दीज आर द 3 एक्शंस ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम। एक तो लेटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक हो गया, दूसरा इंस्पिरेशन के टाइम में 12th रिब को होल्ड करके रखता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एंड द थर्ड वन इज आपके बॉडी को हमें स्ट्रेट रहने में, ट्रंक को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। तो दीज आर द एक्शन ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम। Now this is a thoracolumbar fascia. This thoracolumbar fascia, तुम्हें बाहर जाना है? नहीं ना, जाना है तो बोलो। आप तीनों भी उठो, यू एंड यू, गेट अप। नहीं, तुमको नहीं कह रही हूँ, इन दोनों को, तीनों को, आपको बोल रही हूँ। इधर क्या देख रहे हो, गेट अप। यू 3, वहां से 2 छोड़ करके जो बाकी 3 है ना, उठो और बाहर जाओ। भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। और तुम तो मुझे आकर के मिलना 2 बजे, है ना। तुम क्या बातें कर रहे हो उससे, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट क्या बातें कर रहे हो उससे। This thoracolumbar fascia has got 2 parts, the part which is present in the thoracic region and the part which is present in the lumbar region. So that's why इसका नाम है thoracolumbar fascia.
दिस thoracolumbar fascia it has got, जो इसका हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है, जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है thoracolumbar fascia का, इट हैज गॉट 3 layers, the anterior layer, the middle layer and the posterior layer. तो in this image आप यहाँ पे देख रहे हो, this is quadratus lumborum muscle, और ये पीछे this is the vertebrae है, इसका ये स्पाइन दिख रहा है, और वर्टिब्री के स्पाइन के लेटरल साइड में इधर दोनों साइड मसल होती है जिसको क्या बोलते हैं, इरेक्टर स्पाइनी मसल. बेसिकली जो thoracolumbar fascia होता है, ये सारी वो मसल जो कि आप हमारी बॉडी को इरेक्ट रहने में, जो लॉन्गिट्यूड जो इरेक्ट बैक की जो मसल है ना, जो बॉडी को इरेक्ट रहने के लिए हेल्प करती है, उन मसल्स को कवर करके रखता है. ठीक है, तो यहाँ पे इरेक्टर स्पाइनी है और ये क्वाड्रेटस लंबोरम है. तो दिस फेशिया हैज गॉट 3 लेयर, एन एंटीरियर लेयर, अ मिडल लेयर एंड अ पोस्टीरियर लेयर. इन बिटवीन द एंटीरियर एंड मिडल लेयर बाय सेपरेट होता है, बीच में किसको इनक्लोज करता है, इट विल इनक्लोज द मसल क्वाड्रेटस लंबोरम. और जो इसकी पोस्टीरियर और मिडल लेयर है, इन दोनों के बीच में इनक्लोज होती है मसल, दैट इज कॉल्ड द इरेक्टर स्पाइनी मसल. तो बेसिकली दिस फेशिया हैज गॉट 3 लेयर, द एंटीरियर, द मिडल एंड द पोस्टीरियर. जो मिडल और पोस्टीरियर वाला है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है और थिक होता है. जो एंटीरियर वाली फेशिया है लेयर है वो थिन है एंड नॉट वेरी स्ट्रांग. तो द एंटीरियर एंड मिडल डिवाइड करके किसको इनक्लोज करती है, इट विल इनक्लोज द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, एंड द मिडल एंड द पोस्टीरियर इट विल इनक्लोज द इरेक्टर स्पाइनी मसल. अब लेटरल साइड में, और ये जाकर के कहाँ पे अटैच होंगे, इट विल गेट अटैच. जो लेयर्स है एंटीरियर और मिडल तो कहाँ अटैच हो गई, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अटैच हो गई, और जो इसकी पोस्टीरियर लेयर है वो टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री पे अटैच हो गई. एंड ऑन द लेटरल साइड ऑल द 3 लेयर ऑफ द फेशिया गेट फ्यूज्ड. और आपने एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स पढ़ी होगी तो उसकी ऑरिजिन पढ़ी होगी, तो आपको याद होगा कि जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है और जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है वो इस फेशिया से भी अराइज करता है यहाँ से. ठीक है ना. तो इस इमेज में आपको यहाँ से ये दिस इज द फ्यूज्ड फाइबर्स ऑफ thoracolumbar fascia which give origin to transversus abdominis and internal oblique muscle. तो मीडियली क्या है, मसल को इंक्लोज किया, एंटीरियर और मिडल वाला आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप पे अटैच हो गया, पोस्टीरियर वाला स्पाइनस प्रोसेस के टिप पे अटैच हो गया. लेटरली तीनों फ्यूज होकर के क्या दिया, ऑरिजिन दिया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को. तो दिस इज ऑल अबाउट द thoracolumbar fascia. Now we'll come to the nerves of posterior abdominal wall. This posterior abdominal wall have, मैंने अभी आपको बताया था कि जो श्वास मेजर मसल है उसके सबस्टेंस में एक प्लेक्सस ऑफ नर्व है, दैट इज कॉल्ड द लंबर प्लेक्सस. ठीक है, तो लंबरी प्लेक्सस यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो दिस इज द लंबर प्लेक्सस. दिस लंबर प्लेक्सस इज फॉर्म बाय मेनली बाय L1, L2 और L3 के वेंट्रल रमाई से बनता है, एंड अ पार्ट ऑफ L4 स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रमाई से. ठीक है, तो लंबर प्लेक्सस किस किस से बना, इट इज फॉर्म बाय L1, L2 एंड L3 के वेंट्रल रमस से, एंड अ पार्ट ऑफ L4 वेंट्रल रमस ऑफ L4 स्पाइनल नर्व. जो ये लार्ज पार्ट आ जाता है लंबर प्लेक्स में, जो स्मॉल पोर्शन ऑफ L4 नर्व बच जाती है वो ज्वाइन करता है L5 नर्व को, और इन दोनों के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, लंबोसेक्रल ट्रंक बनाते हैं. ठीक है, और लंबोसेक्रल ट्रंक वो क्या, नीचे जो सेक्रल प्लेक्सस बनेगा सैक्रल रीजन में, उसमें पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, एज L4 इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लंबर प्लेक्सस एंड द सैक्रल प्लेक्सस, तो दैट्स व्हाई L4 नर्व को हम नर्वी फुरकैलिस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, नर्वी फुरकैलिस भी कहते हैं, बिकॉज इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लंबर प्लेक्सस अबव एंड द सैक्रल प्लेक्सस बिलो. क्योंकि मैंने क्या बताया कि L4 दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लार्ज पार्ट जो कि तो लंबर प्लेक्सस में पार्टिसिपेट करता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और थोड़ा सा पार्ट ऑफ L4 जो है वो L5 के साथ फ्यूज करके लंबोसेक्रल ट्रैक्ट बनाता है, जो कि सेक्रल प्लेक्सस में होता है. तो एज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लंबर एंड द सेक्रल प्लेक्सस, दैट उसका यहाँ पे नाम दिया गया नर्वी फुरकैलिस. ठीक है, नाउ अबाउट द लंबर प्लेक्सस. अब देखो, दिस इज द T12, सबको याद होगा T12, इंटरकॉस्टल वेसल्स पढ़ी होगी तो, है ना. 12th वाले को क्या बोलते हैं हम, सबकॉस्टल नर्व. तो दिस इज द 12th, that is the subcostal nerve which is present also in the posterior abdominal wall. A part of the T12 get united with the L1. एक part of T12 क्या होगा, L1 के साथ fuse हो जाएगा, and this L1 it is divided into a large upper part and a small lower part.
This large upper part is finally divided into two branches. One is known as iliohypogastric and one is known as ilioinguinal nerve. जो lower small part होगा L1 का, वो L2 के पार्ट से ज्वाइन करके ये दोनों क्या बनाएगा, जेनाइटोफिमरल नर्व बनाएगा, जो कहाँ से इमर्ज कर रहा था, फ्रॉम द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ psoas मेजर मसल. अब जो बाकी के बचे L2, L3 एंड L4, ये तीनों क्या डिवाइड हो जाएंगे, एक वेंट्रल ब्रांच और एक डॉर्सल ब्रांच. यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का दिखा रहा है ये वेंट्रल ब्रांच है. तो दिस वेंट्रल ब्रांच ऑफ L2, L3 एंड L4, all these three fuses to form the obturator nerve, whereas the ventral branch of L3 and L4 ये फ्यूज करके accessory obturator nerve बनाएंगे, whereas the dorsal branch of all the three fuse to form the femoral nerve, whereas dorsal branch of upper two, that is L1 or L2 or L3, that forms the lateral cutaneous nerve of thigh. So this is how the lumbar plexus is formed. This is the lumbar plexus. ठीक है, जो कि मेनली किस चीज से बनी, L1, L2, L3 एंड अ लार्ज अपर पार्ट ऑफ L4. L4 नीचे बचा हुआ पार्ट, L5 के साथ फ्यूज करके लंबोसेक्रल ट्रंक बनाएगा. ठीक है, ये सारी सप्लाई है कि कौन किसको सप्लाई करता है, सच तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नर्व्स, इसके अलावा जो एक तो लंबर प्लेक्सस है जो कि विद इन द सब्सटेंस ऑफ psoas मेजर उसमें प्रेजेंट थी. उसके अलावा आपने पहले ऊपर पढ़ा, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो सर्वाइकल पार्ट में आपने सिंपैथेटिक चेन पढ़ा, फिर आपने जब थोरेक्स पढ़ा तो उसमें पढ़ा कि थोरैसिक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन है. तो वो सिंपैथेटिक चेन का है, नीचे भी कंटिन्यू हो रही है, तो लंबर में भी आएगी तो उसको क्या बोलोगे, लंबर पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन. वो कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईदर साइड ऑफ द लंबर वर्टिब्री. तो दिस इज द चेन. ये चेन दिख रहा है, यहाँ पे बीच में लंबर वर्टिब्री होगी, ऑन ईदर साइड ऑफ द लंबर वर्टिब्री देयर इज अ चेन नोन एज लंबर सिंपैथेटिक चेन, जो कि ऊपर में किससे कंटिन्यूअस होगी, थोरैसिक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन, और नीचे कहाँ कंटिन्यूअस होगी, इट विल कंटिन्यूअस विद द सैक्रल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक चेन. और सबसे एंड में, पहले भी बताया है कि सबसे एंड में जाकर के कॉकिक्स के इन फ्रंट में दोनों साइड की सिंपैथेटिक चेन फ्यूज करके क्या बनाती है, गैंग्लियोनिक इम्पायर बनाती है. तो दिस इज द गैंग्लियन इम्पायर, और इसका लेवल कहाँ है, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कॉकिक्स. कॉकिक्स के लेवल पे प्रेजेंट होती है, जहाँ ऊपर से आ रही है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल, और जहाँ पे कॉकिक्स के पार्ट दोनों फ्यूज होकर के गैंग्लियन इम्पायर बनाएगा. तो दिस इज द गैंग्लियन इम्पायर. अच्छा, बेसिकली जो ये लंबर सिंपैथेटिक चेन है, इसमें इन चेन्स में क्या होती है, गैंग्लिया है. जैसे सर्वाइकल में कितनी थी, 3 थी, है ना, वैसे ही यहाँ पे 5 वर्टिब्री है, बट यहाँ पे गैंग्लिया कितनी है, 4 है. ठीक है, इस लंबर सिंपैथेटिक चेन में आपको ऐसे इलोंगेटेड इलार्ज ये 4 गैंग्लिया मिलेगा, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड वाली होती है ना, वो फ्यूज कर जाती है. ठीक है, जैसे वैसे ही सर्वाइकल में भी क्या था, ठीक है, एक तो ये है, सुनना ही नहीं तो फिर मुझे क्या सुनाना है. ठीक है, तो दिस इज, और उसके अलावा क्या है, प्लेक्सस भी होती है. तो ये प्लेक्सस को कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट, जो आपने एब्डोमिनल ऑर्टा की ब्रांचेस पढ़ी थी ना, कौन कौन सी पढ़ी, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक, इनके अराउंड क्या होती है, ये सारे नर्व्स क्या होते हैं, प्लेक्सस बनाते हैं. तो दीज प्लेक्सस आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो दीज आर द प्लेक्सस. यहाँ देखो, ये सीलियक ट्रंक है, इसके अराउंड जो प्लेक्सस है दैट इज द सीलियक प्लेक्सस, सीलियक ट्रंक है. वैसे ही जहाँ पे ये बाइफॉर्केट होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल में, एक तो ये सीलियक प्लेक्सस प्रेजेंट होती है विच इज प्रेजेंट अराउंड द सीलियक ट्रंक, और दूसरा जहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्टा बाइफॉर्केट करता है वहाँ पे एक प्लेक्सस ऑफ नर्व होती है जिसको कहते हैं सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस. क्या कहते हैं, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक. वैसे ही कॉकिक्स रीजन में देखोगे, नीचे वाले और रीजन में देखोगे तो आपको इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस भी मिलेगा. लास्टली आपका लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड. तो फाइनली जितनी भी एब्डोमिनल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर है और जितनी भी विसराज हैं, एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ लिवर, थोड़े से पार्ट ऑफ लिवर को छोड़ करके सब के सब कहाँ जाके ड्रेन होते हैं, या तो सिस्टर
सिस्टर्ना काइली में या तो थोरैसिक डक्ट में जाकर के ड्रेन होंगे। कहाँ ड्रेन होंगे? सिस्टर्ना काइली सबको पता है किस लेवल पे प्रेजेंट होता है, L1 L2 के लेवल पे एक इलोंगेटेड सा लिम्फेटिक चैनल है जो कि ऊपर जाके कंटिन्यूस हो जाता है एज अ थोरैसिक डक्ट, तो उसमें ही जाकर के और इन बिटवीन, तो दिस इज द सिस्टर्ना काइली, इसमें जाकर के ड्रेन होते हैं और इनके बीच बीच में कुछ लिम्फ नोड्स हैं, तो ये लिम्फ नोड भी ज्यादातर जैसे यहाँ पे सिलियक ट्रंक के आसपास है तो इसको सिलियक लिम्फ नोड, सुपीरियर मेसेंट्रिक के आसपास तो सुपीरियर मेसेंट्रिक, ऑर्टा के ईदर साइड पारा ऑर्टिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक के ईदर साइड तो इंफीरियर मेसेंट्रिक, कॉमन इलियस जहाँ पे ये एब्डोमिनल ऑर्टा डिवाइड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कॉमन इलियस, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियस, ठीक है। तो दीज आर ऑल द लिम्फेटिक्स, बेटा एक मिनट पेज देना।